गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए थे। आज में जो लास्ट इसमें है न्यूक्लिक एसिड्स। सो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम एंड विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आपके न्यूक्लिक एसिड दिस आर हेरिडिटी मटेरियल which transfer character from one generation to another generation. There are two types, deoxyribose nucleic acid या DNA and ribose nucleic acid or RNA. As nucleic acids are long chain polymer of nucleotide, so they are also called polynucleotide. Means nucleic acids are made up of nucleotides. So chemical composition of nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो वो न्यूक्लियोटाइड आपके किस चीज़ के बने हुए हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। वन इज नाइट्रोजन बेसिस, a sugar and phosphate group. These are basically three components of nucleotide and these nucleotide combines to produce nucleic acid. तो इसमें आपके पहले लेते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन एंड pyrimidines, purines and pyrimidines. Purines and pyrimidine. Purines are adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine, thymine and uracil. Whereas these are nitrogen bases. There are total 5 nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. Out of these, adenines are also called purines, and adenine and guanine are purines, and cytosine, thymine and uracil these are pyrimidines. टोटल 5 नाइट्रोजन बेस हैं, 5 में से 2 प्यूरिन और 3 pyrimidines. नाइट्रोजन, out of these 5 nitrogen bases, DNA contains adenine, guanine, cytosine and thymine. DNA में ये 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, A, G, C और T. यूरेसिल DNA में प्रेजेंट नहीं होता। और इसी तरह से अगर हम बात करें RNA की, तो RNA के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है, उसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। So these are present in RNA, whereas which I marked by green, they are present in DNA. So these are the nitrogen bases present in the nucleotides. These nitrogen bases combines with sugar. Now there are two types of sugar. One is deoxyribose पेंटोज शुगर। पेंटोज आपको पता था जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की थी, विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम, एंड राइबोज पेंटोज शुगर। राइबोज इज आल्सो पेंटोज, वेयर एज डीऑक्सीराइबोज इज आल्सो पेंटोज शुगर। डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज आरएनए कंटेन्स राइबोज पेंटोज शुगर। नाउ third is phosphate group. Third one is phosphate group. Phosphate is your PO4 3 negative. Basically it is derived from phosphoric acids. तो ये हमारे मेन कंस्टिट्यूएंट है न्यूक्लिक एसिड के। तो इसमें आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, these combines to produce nucleoside
side, and then nucleoside combine with phosphate group and produce nucleotide, and this nucleotide then polymerize to produce nucleic acid. Nucleic acid may be DNA or RNA, that depends on the presence of sugar and nitrogen bases. If nitrogen bases are A, G, C and T, sugar is deoxyribose, then it will be DNA, and if it is A, G, C and U, sugar is ribose, then it is RNA. नाम से भी क्लियर है, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये किस तरह से आप कंबाइन करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं, फिर अपने पीपीटी पर चलेंगे कि जो हमारी पेंटोज शुगर होती है, दिस इज योर पेंटोज शुगर वेयर वन पोजिशन इन द रिंग इज occupied by oxygen. At carbon number 1, nitrogen base get attached, whereas these are our pentose sugars, OH group and hydrogen at other carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. This is our nucleoside sugar. This portion is sugar and this portion is nitrogen base. Adenine, it may be adenine, guanine, cytosine, thymine or uracil. In the cases of RNA, it will be uracil, T और U, इसको हम ऐसे लिख देते हैं और आपको क्लियर रहेगा, इट मे बी T और U, थाइमिन और यूरेसिल, कोई भी एक हो सकती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जहाँ तक बात शुगर की बात है तो शुगर में भी ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, यहाँ OH या H कोई भी एक हो सकता है। अगर OH है इट इज राइबोज शुगर, और अगर इस पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन है देन इट इज डीऑक्सीराइबोज, और इस पोजीशन पर अगर आपका यहाँ OH है देन इट इज योर राइबोज। तो डिपेंड करता है DNA है या RNA, ये हमारी पोजीशंस होती हैं। अब एट द कार्बन नंबर 5 जो हमारा CH2OH ग्रुप है, दिस कार्बन इट मे कंडेंस विद फॉस्फेट ग्रुप एंड गेट अटैच्ड विद इट। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है P डबल बॉन्ड OH, फास्फोरिक एसिड है। तो OH ग्रुप ऑफ दिस OH ग्रुप ऑफ द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर एंड द OH ग्रुप ऑफ द फास्फोरिक एसिड, दे कंडेंस एंड प्रोड्यूस a linkage like this. This is oxygen, nitrogen base, either adenine, guanine, cytosine or thymine, deoxyribose या ribose, whatever it is. Third position OH group is free. At fourth position OH and CH2, इसका OH फॉस्फेट के साथ कंडेंस कर जाता है। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है। ये जो हमने ऊपर दिखाया था दिस इज न्यूक्लियोसाइड, एंड नाउ व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड विद इट बिकम्स दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। नाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स कंडेंस टू प्रोड्यूस ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम कंपोजिशन ले रहे हैं, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिटी आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी हो चुकी थी। ये आपके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA यील्ड ए पेंटोज शुगर। जब DNA की हाइड्रोलिसिस की जाती है मतलब उसके हर एक कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, देन वी गेट a sugar
पेंटोज शुगर बताया भी, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस इनको हम बोलते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी इज बीटा डी डिऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है 2 डिऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर वो आपकी राइबोज होती है। सेकंड नंबर पर डीऑक्सी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे, ये आपका सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन, एक मिनट, ये आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे सिर्फ H है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई, इसलिए नाम है डीऑक्सी। जबकि राइबोज के अंदर सेकंड कार्बन पर हमारा OH ग्रुप होता है और डीऑक्सीराइबोज में OH के बजाय सिर्फ H होता है। सो इट इज डीऑक्सीराइबोज एंड दिस इज योर राइबोज, थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। तो इस तरह से आपकी राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होती हैं डीएनए या आरएनए में। डीएनए कंटेन्स 4 नाइट्रोजन बेसिस, एडमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायरमिन। आरएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडनिन, ग्वानिन, 3 आर सेम, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम है, और थायमिन की बजाय वहाँ पर यूरेसिल होता है डीएनए, बट द फोर्थ वन इज यूरेसिल। ये देखिए आपकी स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पर, बेस एट द फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम OH, थर्ड कार्बन OH, and at the fourth carbon atom there is CH2OH and that OH condenses with phosphoric acid to produce phosphate। यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियोसाइड है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और जब इस शुगर के फिफ्थ कार्बन पे, ये आपके फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, देन इट बिकम न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस न्यूक्लियोटाइड कंडेंस बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। ये आपका कार्बन थर्ड है, इसका OH, और किसी दूसरे नाइट्रोजन का फॉस्फेट ग्रुप एट द फिफ्थ कार्बन। जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये फिफ्थ कार्बन पे आपके, और थर्ड कार्बन का OH। तो दे विल कंडेंस एंड टू प्रोड्यूस ए लॉन्ग चेन, ए कोवेलेंट बॉन्ड इन आरएनए और डीएनए दैट होल्ड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टुगेदर by joining a phosphate group at the position number 5, phosphate group at position number 5 in pentose sugar of one nucleotide to the hydroxyl group at the position number 3 in the pentose sugar of next nucleotide। उसके नेक्स्ट के थर्ड का OH, और अगर सपोज कीजिए आपका यहीं पर एक पेंटोज शुगर और भी है ऐसे OH, दिस इज योर CH2O। इस यहाँ पर फिफ्थ कार्बन जो है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप और है। तो कार्बन नंबर 5 पर जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है इसका OH, और उससे नेक्स्ट कार्बन नंबर 3 का OH, दे कंडेंस एंड प्रोड्यूस ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी इसमें, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ए कोवेलेंट बॉन्ड इन आरएनए और डीएनए दैट होल्ड्स ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टुगेदर बाय ज्वाइनिंग, किस किस की ज्वाइनिंग होगी, फॉस्फेट ग्रुप एट द पोजीशन 5 इन पेंटोज शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन 3 इन द पेंटोज शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए ये आपका C3OH ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप एट द C5, दे कंडेंस एंड प्रोड्यूस फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 न्यूक्लियोटाइड आप में अटैच हो गए, इट इज डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तरह से आपकी ये चेन बन जाती है, जिसमें शुगर इज अटैच्ड विद फास्फोरस एट थर्ड कार्बन, देन शुगर अटैच्ड विद द सेम कार्बन एट फिफ्थ, फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर। इस जो आपका है यहाँ पर इसका 3 एंड फ्री होगा, जबकि जो ऊपर आपका शुगर है इसका 5th एंड फ्री होगा। दिस शुगर इज कॉल्ड 3 to 5 इन दिस डायरेक्शन, 3 to 5, बिकॉज एट द बॉटम 3 एंड ऑफ द शुगर इज फ्री, whereas at the top 5 end of the sugar is free. So this is a backbone of DNA और RNA strands। मेन स्ट्रैंड है जो कि एक DNA या RNA स्ट्रक्चर का एक मेन बैकबोन बनाती है।
अब ये देखिए आपके डीएनए वर्सेस आरएनए की स्ट्रक्चर। जो डीएनए इसमें आपके डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड आपकी ये है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये है, जबकि दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन आपकी ये होगी, ये आपकी सेकेंड न्यूक्लियोटाइड चेन होगी। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स, टू कंप्लीमेंट्री चेन्स ऑफ ईच अदर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वेयर एज आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है, जबकि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट, ये आपकी डबल स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड अगर आपकी 3 to 5 इस डायरेक्शन में है तो दूसरी स्ट्रैंड इसकी एंटी पैरेलल होगी, मतलब 3 to 5 इस डायरेक्शन में होगी। तो एक स्ट्रैंड का अगर 3 एंड डाउन द बोट एट द बॉटम, 3 एंड यहाँ पर फ्री है तो दूसरे का यहाँ पर 5th एंड फ्री होगा। इसका अगर यहाँ पर 5th एंड फ्री है तो इसका यहाँ 3 एंड फ्री होगा। ये आपके थायमीन साइटोसिन की स्ट्रक्चर है, इधर ग्वानिन और एडेनिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। ग्वानिन और एडेनिन आपकी हेटेरोन्यूक्लियर डबल फ्यूज स्ट्रक्चर होती हैं, जबकि साइटोसिन और थायमीन जो कि आपकी पिरिमिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग होती है, हेटेरोन्यूक्लियर होती हैं, हेटेरोसाइक्लिक जिसको आप बोल सकते हो, कंटेन्स रिंग ऑफ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। 2 डिफरेंट एटम्स की रिंग इसके अंदर होती है, कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग है। हेटेरोन्यूक्लियर दोनों हैं, हेटेरोसाइक्लिक, लेकिन जो प्यूरिन्स हैं वहाँ पर डबल फ्यूज्ड रिंग होती हैं और यहाँ सिंगल रिंग होती है। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिकल या 2 स्ट्रैंड्स, वेयर आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल स्ट्रैंड। इन डीएनए, अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ से आपको बताते हैं जरा। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 strands which runs parallel to each other and which coiled on a hypothetical axis। ऐसा लगता है कि वो किसी एक्सिस पर coiled है, एक स्टैंड उसकी ये होगी, दूसरी स्टैंड बिल्कुल इसी के पैरेलल, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। देयर आर 2 strands। अगर एक स्टैंड आपकी, मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ शुगर फॉस्फेट शुगर, सॉरी फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरह से आपकी एक स्टैंड है। और हर एक शुगर पर एक नाइट्रोजन बेस भी अटैच होता है, लेट इट इज एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड इट इज साइटोसिन, कोई भी स्ट्रैंड। तो ये आपकी एक स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड में आपका अगर बॉटम पे, ये थोड़ा सा और आगे लेते हैं, फॉस्फेट शुगर साइटोसिन फॉस्फेट शुगर लेट इट थायमीन। तो सपोज कीजिए आपका इस शुगर का 3 एंड फ्री है, तो ये आपकी एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, शुगर पेंटोज, विद इट अटैच्ड, शुगर के साथ अटैच है हमारी नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इसकी जो सेकंड स्ट्रैंड होगी, जैसे ये आपकी एक स्ट्रैंड होगी जो मैंने अभी दिखाई है ये वाली, तो इसकी जो सेकंड स्ट्रैंड होगी ब्लू वाली, ये कैसे होगी आपकी, ये भी आपकी एक शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, सेम ऐसे ही चलेगी, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। तो ये जो स्ट्रैंड होगी दूसरी, एक तो इसके एंटी पैरेलल होगी, इसमें आपका जो पहली स्ट्रैंड थी 3 एंड बॉटम पे और 5th एंड टॉप पर फ्री था यहाँ पर, तो इसका आपका 3 एट द टॉप एंड बॉटम एट द 5th एट द बॉटम फ्री होंगे। तो एक 3 to 5 अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो दूसरी 3 to 5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, 3 to 5। रही बात सेकंड स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस की, तो नाइट्रोजन बेसिस का हमेशा ध्यान रखना है कि एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन होता है और जी के सामने हमेशा सी। तो टी के सामने हमेशा ए, सी के सामने हमेशा जी, सी के सामने हमेशा जी होगा और यहाँ टी के सामने ए होगा। ए एंड टी आर अटैच्ड विद एडेनिन एंड थायमीन आर अटैच्ड विद डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये जो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हमेशा ध्यान रखना है जी।
जबकि जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी और सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो ट्रिपल होंगे। तो इस तरह से हमारी दो स्ट्रैंड्स बनती हैं। अब मैंने यहाँ पर दो स्ट्रैंड दिखाई हैं, वन विद रेड कलर एंड अदर विद ब्लू कलर। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ए इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद टी बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद सी ऑलवेज विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। अगर आपकी एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दी, सपोज कीजिए क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि आपको एक डीएनए स्ट्रैंड दी है जिसमें नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस आपको दे रखी है ए जी सी सी टी जी सी ए टी जी, and you are asked what is the sequence of nitrogen base in its complementary strand। जो इसकी complementary strand होगी तो इसमें नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अंडरस्टूड है, ए के सामने हमेशा टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी जी टी ए जी, सी सी जी टी टी ए सी। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर देते हो तो सी विद जी एंड ए विद टी, कहीं पर भी देखना ए के सामने हमेशा टी ही होगा और सी के सामने हमेशा जी और सी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ए और टी की जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। So this is the structure of DNA which consists of two strands, which runs parallel to each other along around a hypothetical axis। एक स्ट्रैंड में जो हेलिक्स होता है, इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इन सिंगल हेलिक्स यहाँ से लेकर ये आपका एक हेलिक्स बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो इस एक हेलिक्स में आपके 10 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि दो नाइट्रोजन बेसिस ए और जी जो भी है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो किसी भी दो नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं ज़रा। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, अब देखिए इसमें यहाँ पर एक हेलिक्स आपका कहाँ कंप्लीट होगा, ये एक हेलिक्स आपका यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। दिस इज़ योर वन कंप्लीट हेलिक्स और इसमें आपकी जो लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम होगी और यहाँ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टोटल 10 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। टोटल 10 नाइट्रोजन बेसिस और 10 नाइट्रोजन बेस हैं और उनके जो टोटल लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में ये जो आपका डिस्टेंस है दो नाइट्रोजन बेस के बीच में, इट इज़ दिस डिस्टेंस, इट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आपका एक जो हेलिक्स देखा, ये मान लीजिए आपको यहाँ से शुरू होता है एक हेलिक्स और उसी लेंथ में यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर ये आपका एक कंप्लीट हेलिक्स मानते हैं तो इसमें हम देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वाला काउंट किया तो फिर यहाँ का भी काउंट करना पड़ेगा। उधर ये यहाँ बीच वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया है तो यहाँ वाला काउंट करेंगे हम। टोटल 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं इन वन हेलिक्स। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, तो डिफरेंस हम बता चुके हैं। पेंटोज की बजाय राइबो शुगर होगी और थाइमीन की बजाय यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, यूरेसिल। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए। RNA molecules are 3 types. They perform different functions. They are messenger RNA. Messenger RNA encodes amino acid sequence of the polypeptide. tRNA, transfer RNA, brings amino acid to the ribosomes during translation. And ribosomal RNA serves as a structural component of the protein, making structure of ribosomes. तो आपका जो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है
लेट दिस इज डीएनए। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, पहले आपका जो डीएनए है ये एक पॉइंट पर जहाँ पर आपका जीन है एक पार्टिकुलर डीएन नाइट्रोजन बेसिस प्रोटीन के लिए, वहाँ से इसकी जो क्वाइलिंग है वो ओपन हो जाती है और फिर एक ये जो पार्टिकुलर स्ट्रैंड है जिस पर कोड है एक पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए, ये अपनी एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगी, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड के अंदर ए के सामने टी के बजाय यू होगा और जी के सामने सी बाई ट्रिपल बॉन्ड और ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर ये जो आपकी स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएगी एंड इट विल बी आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। ये स्ट्रैंड यहाँ से साइटोप्लाज्म में आ जाती है, डीएनए से न्यूक्लियस में से बाहर आके साइटोप्लाज्म में सिंगल स्ट्रैंड यहाँ से अलग हो जाएगी और डीएनए आपका फिर से क्वाइल्ड हो जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए ओपन्स एंड सिंथेसाइज आरएनए, अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा जिसमें थायमिन की बजाय यूरेसिल लगेगा और वो आपका आरएनए होगा। आरएनए यहाँ से अलग होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आपको होता है राइबोसोम्स और राइबोसोम के अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर डिफरेंट अमीनो एसिड को इन द सीक्वेंस लेकर आते हैं और जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस होती है दीज आर द कोड फॉर अमीनो एसिड। ये उस अमीनो एसिड के लिए कोड का काम करते हैं कि पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ट्रिपलेट कोड होता है, 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड AGC। ये एक पार्टिकुलर नाइट्रोजन बेस, अगर यहाँ पर आपका सपोज कीजिए आपकी मैसेंजर आरएनए बनी है राइबोसोम उस पर डीएनए पर और ये आपके सीक्वेंस है AGC CTAU नॉट T AGCC। तो AGC आपका एक अमीनो एसिड के लिए होगा, उसके बाद में सेकंड अमीनो एसिड होगा CUA। तो ये जिस अमीनो एसिड के लिए कोड है वो अमीनो एसिड आपका अटैच होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अगर एक भी अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है तो आपका प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो वो यहाँ पर यही चीज़ है, आपका AGC एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, पहले वो अमीनो एसिड आएगा फिर दूसरा अमीनो एसिड आएगा जो CUA जिसके लिए कोड है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड और इस तरह से एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड अटैच कंबाइंस टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन। तो इस तरह से हमारे न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 टाइप, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ RNA एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इस तरह से हमारी न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया। इससे अलग चैप्टर के अंदर हमारे एक छोटा सा टॉपिक और है विटामिन्स का, वो इस साल सेशन से हटा दिया गया है, बाकी फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। विटामिन्स में ज़्यादा नहीं है, यू जस्ट डू द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन। विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 काइलोसिस या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, विटामिन B6 कॉन्वल्जन, ये सोर्सेज आपके फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर। विटामिन B1 के लिए यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स। B2 के लिए मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी। B6 के लिए यीस्ट, मिल्क, एग यॉक। विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन मीट, फिश, एग एंड कर्ड एंड पर्नीशियस एनीमिया, RBC डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन। विटामिन C स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन D रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स। विटामिन E स्टेरिलिटी, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस, और साथ में स्टेरिलिटी, बांझपन जो होता है हमारा वो विटामिन E की कमी की वजह से होता है। विटामिन K इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, मतलब ब्लड के क्लोट होने में टाइम लग जाता है, तो एक तरह से कीजिए आप ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम आती है उसमें। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन की। सो दिस इज योर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट। थैंक यू।